चलो प्रदीप से पूछते हैं कि माइक अनम्यूट करो अपना। Yes, sir. So pericyclic reactions are a new class of reactions. These reactions do not require any type of reagent catalyst to take place. No intermediate is formed during these reactions. Right? So the name peri and cyclic, you can assume that during these reactions some cyclic transition states are formed, and the simultaneous breaking of bond and making of bond breaking and making take place at the periphery of the circle. That's why these reactions are known as pericyclic reactions. This is a new topic for you people, as you have not studied about this type of. You can see there is a explanation of these reactions written on my laptop screen. I hope you are able to see my laptop screen. Say yes or no. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So what is the definition of pericyclic reactions? These are continuous concerted recognition of electrons. Cyclic transition state is formed. No intermediate single transition state is formed. So during the cyclic transition state, first of all, our reactant convert into cyclic. The cyclic transition state convert into product. So that we expect or that take place during the reaction happens at the periphery of the cyclic transition state. That's why these reactions are known as pericyclic reactions. During bond breaking and bond making occur at the same time. That is these are take place by concerted mechanism. One word concerted is used in the definition of pericyclic reactions. What is the meaning of this concerted? Concerted means both the process of making of bond and breaking of bonds take place at the same time. Generally, in simple reactions that we were discussing a few seconds ago, first of all, during a simple chemical reaction, bond breaking is take place. Old bonds are broken down, and new bonds are formed during a chemical reaction. But during these reactions, bond breaking and bond making take place simultaneously at the same time. Can be seen the making of transition state or asynchronous unequal in transition state. Right? Synchronous means the breaking of bonds and making of bonds during the transition state are same in number, and asynchronous means number of bonds that break down during the process during the transition state and number of bonds that are formed in transition states are not equal. So both type of processes are possible. Two scientists, Foucault and Hofmann, got Nobel Prize in Chemistry in 1981 for their theories developed independently. Both have given different theories to explain these pericyclic reactions, and both got the Nobel Prize in same year in 1981. Concerning the course of chemical reactions,
Okay, Fukui and Hoffman. So basically these are three type of reactions basically, but nowadays two are also in. अब आप लोग जब भी आपको नहीं दिखेगा, स्क्रीन नहीं दिखेगी, आवाज नहीं आएगी, तो आप मुझे बता देंगे कहाँ से नहीं आ रही थी। अब देखो मुझे दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। हेलो, यस सर। क्या क्या टाइप्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था? नो। टाइप्स के बारे में नहीं किया था, आप लोगों ने नहीं सुना था? अच्छा, ये हो गया था, ये वाली स्लाइड हो गई थी पूरी? यस सर। यस सर, यही बस हुआ था। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन जो है, ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है 5 टाइप की। ठीक है, 5 टाइप कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी 5 टाइप है? इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, कीमोट्रोपिक रीअरेंजमेंट एंड ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस। ठीक है, सो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस कौन सी है? बेसिकली तो देखो इनके 3 ही टाइप हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लो एडिशन और सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस कौन सी है? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन वो रिएक्शंस हैं जिनमें कि कोई एक साइक्लिक रिएक्टेंट है वो एसाइक्लिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, या एसाइक्लिक रिएक्टेंट है वो साइक्लिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जैसे देखो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, इसको आपको दिख रही होगी लैपटॉप स्क्रीन? यस सर। हाँ, तो ये जैसे साइक्लिक एसाइक्लिक रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो गया? साइक्लिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। या ये साइक्लिक प्रोडक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? एसाइक्लिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें ये 2 प्रकार की रिएक्शन होंगी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक में 2 प्रकार की होंगी, जिसमें या तो एसाइक्लिक अचक्रीय है वो चक्रीय में कन्वर्ट होगा, या जो चक्रीय प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, चक्रीय रिएक्टेंट है वो अचक्रीय प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सो ये एसाइक्लिक रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस इनको कहा जाता है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। सेकेंड इज साइक्लो एडिशन रिएक्शन। सो जैसा कि आप इसके नाम से ही आपको आइडिया हो गया होगा, ये साइक्लो, ये एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, किस टाइप की रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन है। तो इसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट है वो जुड़ करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं।
ओके बच्चों, देख पा रहे हैं स्क्रीन को? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? साइक्लो एडिशन रिएक्शन में एडिशन होगा, ठीक है। कोई भी दो रिएक्टेंट होंगे वो एडिशन करेंगे, और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। जैसे आप देख भी रहे होंगे, 2 इथाइन मॉलिक्यूल्स ऐड होकर क्या बना रहे हैं? साइक्लोब्यूटीन बना दिया इन्होंने। तो ये जो रिएक्शन है ये कहलाती है साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, राइट। इनको क्या कहेंगे? साइक्लो एडिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप इज सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट क्या होगा? सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट में कोई एक सिग्मा बॉन्ड है उसकी शिफ्टिंग हो जाएगी, राइट। जैसे ये सिग्मा बॉन्ड है, मैं इसको एरो से बता रहा हूँ, ये शिफ्ट हो जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा? ये H यहाँ पर, और ये यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। इसी टाइप से किलोट्रोपिक रीअरेंजमेंट भी होगा, और ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस। तो मेन जो है वो 3 टाइप है: इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन और सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। हम इनके बारे में बात करेंगे, किलोट्रोपिक के बारे में बात करेंगे, जहां पर कि कोई एक जो ट्रांसफर होगा वो ग्रुप का ट्रांसफर होगा, ग्रुप ट्रांसफर, और ये किलोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। अब इन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरीज हैं, 3 सिद्धांत है। वुडवर्ड हॉफमैन का सिद्धांत, ये सिद्धांत बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री। मतलब जो ऑर्बिटल रिएक्शन में पार्ट, उस ऑर्बिटल के 2 सिमेट्री एलिमेंट बेसिकली हम लोग देखते हैं, और दूसरा C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। रिएक्टेंट वाले ऑर्बिटल में कौन सी सिमेट्री, किसके रेस्पेक्ट में वो सिमेट्री का, मिरर प्लेन के रेस्पेक्ट में है या C2 के रेस्पेक्ट में सिमेट्री का, वही सिमेट्री एलिमेंट प्रोडक्ट में भी कंजर्व्ड होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं हो कि वो रिएक्टेंट तो मिरर प्लेन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है लेकिन प्रोडक्ट वो एसिमेट्रिक है, राइट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को दोनों ही को जिस भी सिमेट्री एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होना चाहिए। तो उसका कंजर्वेशन के बारे में हम लोग इसमें वुडवर्ड हॉफमैन रूल में देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री इसमें मेन फोकस की जाती है। दूसरा जो है वो है FMO अप्रोच, फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। FMO अप्रोच भी इसको बोला जाता है, ये दिया गया था फुकुई द्वारा, ठीक है। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम जो होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल और ल्यूमो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल के इंटरेक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। होमो एंड ल्यूमो के बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। ये जो थ्योरी है ये, और इससे पहले वाली कंजर्वेशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल सिमेट्री, इन दोनों के बारे में ही, इन दोनों कॉन्सेप्ट को देने पर ही 1981 का नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का फुकुई और वुडवर्ड को मिला था, हॉफमैन को मिला था, हॉफमैन और फुकुई को मिला था, राइट। सो ये 2 मेन कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा थर्ड है वो है एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ट्रांजिशन स्टेट को देखेंगे कि वो किसके रेस्पेक्ट में एरोमेटिक है, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। उसके बारे में देखेंगे और एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट को करेंगे, उसी पर बेस्ड हमारे प्रोडक्ट बनेंगे। तो 3 टाइप के ये थियरी हैं जो यूज किए जाएंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। अब इसमें क्या थिंग्स मैटर करेंगी जिस पर बेस्ड हमारा प्रोडक्ट बनेगा? तो पहला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उस पर बेस्ड होगा कोर्स ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन किस डायरेक्शन में चलेगी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करेंगे। सेकेंड इज स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में जो भी अपने सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए रहेंगे उन सब्स्टिट्यूएंट्स का ओरिएंटेशन कैसा होगा,
मतलब कौन सा आइसोमर उसमें बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा, कौन सा मेजर होगा। क्योंकि साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा इसमें, दो जो स्टार्टिंग की दोनों जो प्रोसेस है उसमें, साइक्लो एडिशन में भी और इलेक्ट्रोसाइक्लिक में भी, जब एसाइक्लिक से साइक्लिक बनता है तो उस प्रोसेस में, तो वहां पर जो जो भी बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी या बॉन्ड की मेकिंग होगी, उससे जुड़े हुए जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका ओरिएंटेशन क्या होगा, मैटर करती है। और नंबर 3, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को किस कंडीशन में हम लोग करवा रहे हैं, मतलब उसको थर्मल कंडीशन में करवा रहे हैं कि फोटोकेमिकल कंडीशन में करवा रहे हैं, उस पर भी कोर्स ऑफ द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कैसी होगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो डिपेंड। 3 फैक्टर्स हैं ये जो मैटर करते हैं केमिकल रिएक्शन में, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड देन कंडीशन, फोटोकेमिकल है या फिर थर्मल कंडीशन है। तो हम लोग यहाँ पर इन रिएक्शंस को देखते हैं। जैसे देखो, सबसे पहला है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। तो सबसे पहले एक बार हम इनको मोटामोटी देख लेते हैं कि कौन कौन सी वो रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहली है अपनी, इसमें जो टाइप है वो है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस आप जैसे देख पा रहे होंगे कि इसमें रिंग की ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों होती हैं, जो आपके सामने लिखी हुई रिएक्शंस हैं। फर्स्ट रिएक्शन है उसमें रिंग की क्लोजिंग हो रही है, सॉरी रिंग ओपनिंग हो रही है, सॉरी रिंग ओपनिंग हो रही है, साइक्लोब्यूटीन कन्वर्ट हो रही है 1,3-ब्यूटाडाइईन में। इसमें जो रिंग ओपनिंग होगी उसमें क्या होगा, उस प्रोसेस में कोई भी एक सिग्मा बॉन्ड है वो एक पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक पाई या सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। जो रिंग ओपनिंग है, फर्स्ट एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे कि रिएक्टेंट में आपके केवल एक पाई बॉन्ड है, जबकि प्रोडक्ट में 2 पाई बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, आपके रिएक्टेंट में 4 सिग्मा बॉन्ड है और प्रोडक्ट में 3 सिग्मा बॉन्ड है। अगर आर वाला बॉन्ड है उसको हम छोड़ दें तो 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड है वो एक पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और इसका ऑपोजिट होता है रिंग क्लोजिंग में। रिंग क्लोजिंग में देखो, आपके रिएक्टेंट में जो 135 ट्राई हेक्साट्राईइन है उसके अंदर 3 पाई बॉन्ड है, और जो आपकी साइक्लोहेक्सिन बनी है, सिर्फ डाईइन बनी है, साइक्लोहेक्साडाईइन जो बनी है उसमें 2 ही पाई बॉन्ड है, राइट। अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें, सब्स्टिट्यूएंट वाला सिग्मा बॉन्ड नहीं काउंट करेंगे हम लोग, तो आप देख पा रहे होंगे कि रिएक्टेंट में 5 सिग्मा बॉन्ड है और प्रोडक्ट में 6 सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है वो एक सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, राइट। इसी टाइप से आपका साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन जो है वो जब कन्वर्ट हो रहा है किसमें, जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड के बजाय प्रोडक्ट में कितने हैं, केवल 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है वहां पर। सो दोनों प्रकार की रिएक्शंस इसमें पॉसिबल है, रिंग ओपनिंग एंड रिंग क्लोजिंग, और एक्सचेंज ऑफ पाई बॉन्ड फॉर सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड फॉर पाई बॉन्ड, दोनों ही पॉसिबल है। क्लासिफाइड बाय न्यूमेरल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें जो फर्स्ट आपका है वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, दूसरा जो है आपका 6n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और थर्ड है वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सो ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस है। मैं आपको अभी केवल यही बताऊंगा, इसके टाइप्स के बारे में ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देखिए साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस रिएक्शन है डील चिल्डर रिएक्शन। तो इसमें एक 1,3-ब्यूटाडाइईन ऐड हो रही है किसके साथ में, इथाइन के साथ में। तो 1,3-ब्यूटाडाइईन में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। सो इसको 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहे हैं, तो 4+2 इसको बोलेंगे। यूनियन ऑफ 2 पाई सिस्टम्स इसमें होगा, एक्सचेंज ऑफ पाई बॉन्ड फॉर सिग्मा बॉन्ड इसमें होगा। आप देख पा रहे होंगे कि इस जो अपना रिएक्टेंट है उस साइड में टोटल 3 पाई बॉन्ड्स हैं और प्रोडक्ट साइड में केवल 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो 2 पाई बॉन्ड हम किसमें कन्वर्ट हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो गए। क्लासिफाइड बाई m+n, m और n यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन अवर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 2 पाई सिस्टम्स, जो अपने 2 पाई सिस्टम हम लेंगे ना, एडिशन कर रहे हैं तो 2 रिएक्टेंट चाहिए और दोनों ही पाई सिस्टम होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने चाहिए। तो एक m
फर्स्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पर 4+2 लिखा हुआ, फर्स्ट वाले में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाले में 2 है, तो इसको m+n सिस्टम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम बाद में देखते हैं। सॉरी। अब थर्ड टाइप देखिए आप, ये 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट्स, सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस, reorganization of sigma and pi bonds, migration of a sigma bond, sigma bond का migration होगा, number of sigma and pi bonds remain constant। तो यहाँ पर इससे पहले वाली जो थी दोनों में नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, वेरी हो जाता है। यहाँ पर नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सेम रहेगा, जितने पाई बॉन्ड प्रोडक्ट में उतने ही आपके रिएक्टेंट में होंगे, और जितने सिग्मा बॉन्ड रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट में होंगे। तो नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स will remain constant. There will be no change in number of pi and sigma bonds. Classify by Mn rearrangement or Mn shift or Mn number of atoms in fragment. तो इसमें क्या होगा कि किस एटम से कौन से एटम पर हाइड्रोजन की ट्रांसफर हो रही है या सिग्मा बॉन्ड की ट्रांसफर हो रही है, तो उस पर बेस्ड इसका टाइप्स हैं। तो Mn का मतलब यहाँ हो गया, जैसे देखो मैं इसको बताऊं आपको कि ये वाला एग्जांपल मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और इसको बोलेंगे हम 1। तो 1 से कहाँ पर जा रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होकर कहाँ जा रहा है, 3 पर जाएगा जब प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको बोल देंगे हम, ये देखो ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर, तो ये इसको बोलेंगे 1 3। m कहाँ से, 1 से कहाँ पर, 3 पर। सो 1 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट ये अपना है। जैसे ये एक एग्जांपल लिखा हुआ 1 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। सो यहाँ से ये 1 इसके लिए पहला जो ये लिखा हुआ है, जहाँ से वो शिफ्ट हो रहा है उसको, और जहाँ पर हो रहा है तो 3 पर, तो ये हो गया 1 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ये 1 3 सिग्माट्रोपिक, ये मिथाइल का एल्काइल शिफ्ट हो रहा है, उसमें सब इससे पहले वाले में हाइड्रोजन शिफ्ट था और यहाँ पर एल्काइल की शिफ्टिंग हो रही है। तो ये सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट के एग्जांपल है। ये क्लेजन रीअरेंजमेंट है। क्लेजन रीअरेंजमेंट में देखो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, इसमें ये सिग्मा बॉन्ड, इन दोनों के बीच वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये शिफ्ट होगा। तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कहाँ से हो रहा है, 3 से 3 पर हो रहा है, राइट। तो इसको 3 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट देंगे। ये कुछ इसके हैं आज की सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। क्या रिक्वायरमेंट